اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج میں ریاست گجرات کے ولساڑ شہر میں ہوں۔ آج یہاں پہ پہلی مجلس بعد نماز ظہر مسجد فاطمہ ڈپو ولساڑ میں ہوگی، اور پھر دوسری مجلس بعد نماز عصر مسجد محمدی قلعہ پارنی میں ہوگی، اور تیسری مجلس کریم نگر مسجد نور میں ہوگی بعد نماز عصر مغرب، اور چوتھی آخری مجلس بعد نماز تراویح مسجد عبد الرحمن گرین پارک میں ہوگی۔ یعنی اس طریقے سے آج 4 پروگرام میرے ولساڑ شہر میں ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، طاقت دے، ہمت دے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں سفر اور بیانات بڑے بھاری پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس قبول کرے ان تمام خدمات کو۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بھیجی ہے۔ شہباز اختر نے بتایا کہ ناگپور میں کلمہ لکھی ہوئی ایک ہری چادر کو جلانے پر فساد پھوٹ پڑا۔ ایکچول میں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے آتنکی جگہ جگہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ اورنگزیب معاملے پر 2 گروپوں کے درمیان پتھراؤ ہو گیا، کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور آگ لگا دی گئی، پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے، آنسو گیس کے گولے بھی داغے ہیں۔ مکھیہ منتری فڑنویس نے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے، مسلم تنظیموں نے بھی رد عمل سے منع کیا ہے، پورے شہر میں حکم امتناعی نافذ کر دیا گیا ہے، یعنی کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اورنگزیب کا مقبرہ تنازع پر مہاراشٹر کے ناگپور سے یہ ہنگامے کی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ 2 گروپوں کے درمیان پتھراؤ کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق ناگپور میں واقع محل نامی محلے میں شیواجی کے مجسمے کے پاس وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے آتنکیوں نے اورنگزیب کا علامتی مقبرہ بنایا، اس پر کلمے کی ہری چادر اڑائی گئی جسے جلایا گیا۔ یہ معاملہ دوپہر 3 بجے کا ہے۔ کلمے کی چادر جلانے کی خبر شہر میں پھیل گئی، مسلم نوجوان بھی بھڑک گئے، اور افطار کے بعد جب کچھ نوجوان شیواجی چوک پہنچے تو وہاں موجود وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے آتنکیوں نے دونوں گروپوں کے درمیان پھر پتھراؤ ہوا، آتش زنی کا ارتکاب کیا گیا تھا، کئی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ بھی کی گئی، جس کے بعد پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا اور آنسو گیس بھی داغے گئے، آنسو گیس کے گولے بھی داغے گئے۔ خیر، اس وقت مہاراشٹر میں چھاوا فلم آنے کے بعد باقاعدہ ماحول ہر طرف خراب ہو رہا ہے اور پری پلان خراب کیا جا رہا ہے۔
नाज़रीन, दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जंतर मंतर पर वक्फ एक्ट में तरमीम को लेकर, इस नापाक बिल को लेकर बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की निगरानी में ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें वक्फ एक्ट में तरमीम के ताल्लुक से कहा गया कि ये आईन पर भी हमला है, संविधान पर भी हमला है, हुकूमत फैसला वापस ले। मुजाहिरे में लाखों की तादाद में यूं समझिए कि लोग पहुंचे हैं और इस मौके पर जितने बड़े बड़े उलमाए किराम आए थे उन तमाम ने अपनी बात पेश करते हुए वक्फ एक्ट में तरमीम को लेकर अपनी बात पेश की और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया कि ये फैसला अपना वापस ले, क्योंकि वक्फ एक्ट जो तरमीमी बिल 2025 लाया जा रहा है ये पूरी तरीके से एक नापाक शैतानी बिल है और किसी भी तरीके से वक्फ की जायदाद को हथियाने और कब्जा करने वाला ये नापाक बिल है। बड़ी तादाद में अवाम ने, सियासी रहनुमाओं ने और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने इस एहतजाज में शिरकत की। जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी और तमाम ही तहरीक तंजीमें और सियासी दीनी मिल्ली कायदीन बड़ी तादाद में इस मौके पर मौजूद रहे। मौलाना महमूद बद्दी ने इस मौके पर कहा और सीधा हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत वक्फ जायदादों पर कब्जे की राह हमवार करना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे घरों, मस्जिदों और मदरसों पर पहले ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और अब आईन पर, संविधान पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। हमें हर हाल में इस तरमीम की, इस वक्फ एक्ट 2025 की मुखालिफत करनी होगी। इस मुजाहरे में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद, मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद समेत कई सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हां, गौतम अडानी, जिस अडानी और अंबानी के हाथ पूरा मुल्क बेचा जा रहा है, उसी गौतम अडानी को लेकर खबर आ रही कि गौतम अडानी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का दौरा किया और एयरपोर्ट के इफ्तिताह की नई तारीख का ऐलान किया। एक्चुअल में बीजेपी ने पटरियां भी बेच दी, ट्रेनें भी बेच दी, एयरपोर्ट भी बेच दिया है। तकरीबन अब मुल्क में शायद बिकने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर इन चोरों की नजर पड़ गई है। नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने बताया कि बिहार के दबंग युवा नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बिल्कुल नाकाम सरकार करार दिया और तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में इन 20 सालों में 60,000 से ज्यादा मर्डर, कत्ल हुए हैं और 25,000 इस्मत दरी, रेप और गैंग रेप के मामलात सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की बिगड़ती सूरत हाल और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को असेंबली इहाते में नीतीश हुकूमत को घेरने की कोशिश की। ऐवान के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और हो रहा है। नीतीश कुमार के पास ही मुकम्मल दाखिला है और हमेशा से रहा भी है। वो मुजरिमों को हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और मुजरिमों की हिफाजत कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुजरिमीन बेलगाम हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुजरिम से डरकर पुलिस भाग रही है, यह है मेरा बिहार। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आखिर बता ही दिया कि वो किस ज़हनियत के पले बड़े हैं और कहाँ पर उनकी तालीम और तरबियत हुई है। नरेंद्र जी मोदी ने कहा कि आरएसएस से मुझे ज़िंदगी का मकसद मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिखाया गया कि जो भी करो मकसद के साथ करो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रेडमैन के साथ किए गए एक पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी पर आरएसएस के असरात के बारे में बात की है। उसमें उन्होंने अपने बचपन पर आरएसएस के असर और समाजी शोबे में उसके जरिए किए गए कामों पर भी बात की है। वज़ीर आज़म मोदी ने बताया कि वो 8 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए थे। शायद इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ है। नाज़रीन,
उत्तर प्रदेश के संभल, आप जानते हैं कि शाही जामी मस्जिद को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है और अब एक और बड़ी अफसोसनाक खबर संभल से आ रही है। बताया जा रहा है कि संभल में गाजी मियां के नेजा मेले पर पाबंदी का ऐलान किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हजरत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर तकरीब, ये प्रोग्राम नहीं होगा, तकरीब नहीं होगी। पुलिस ने कहा कि डाकुओं के नाम पर मेला नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मुनअक्किद होने वाला नेजा मेला इस साल नहीं मुनक्किद किया जाएगा। पुलिस ने मुंतजिमीन से क्लियर तौर पर कहा है कि वो डाकुओं के नाम पर मेला मुनक्किद नहीं होने देंगे। हर साल होली के बाद संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला लगाया जाता है। दूसरी बिरादरी के लोगों ने पुलिस इंतजामिया के सामने इस तकरीब पर ऑब्जेक्शन, एतराजात उठाए थे। कहा गया कि सैयद सालार मसूद गाजी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ऐसे शख्स के नाम पर मेला लगाना और उसकी तारीफ करना दुरुस्त नहीं। इस एतराज के दरमियान पीर को नेजा मेला कमेटी के लोगों ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात की, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से नफरतें अपने चरम पर पहुंचाई जा चुकी है और खुद हुकूमत की जानिब से नफरतें फैलाई जा रही है। नाज़रीन, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर से एक बड़ी खबर आ रही है। अमृतसर में मंदिर पर बम फेंकने वाले मुलजिम का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में मुजरिम मारा गया और दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि जुमा और हफ्ते की देर रात हुआ हमला सीसीटीवी में कैद हो गया था। खबर है कि पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमीन की तरफ से गोलीबारी की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम को मार गिराया, यानी इनकाउंटर कर दिया। ग्रेनेड फेंके जाने का वाकया खंडवाला इलाके में हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने का अहम मुलजिम मारा गया है। मुश्तबा मुलजिम की पहचान गुरु सेदक सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस की तरफ से जवाबी गोलीबारी में जख्मी होने के बाद उसने आखिर अस्पताल में दम तोड़ दिया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे मुगलों की हुकूमत आ गई है। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह छाए हुए हैं, बिल्कुल हर तरफ औरंगजेब ही औरंगजेब है और हजरत औरंगजेब के नाम पर बाकायदा महाराष्ट्र का माहौल और मुल्क का माहौल खराब किया जा रहा है। गुज़िश्ता कल बाकायदा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आतंकियों ने नागपुर में फसाद फैला दिया। लेकिन खैर, अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो बने हैं हमारे दोस्त हर्षवर्धन जी सपकाळ, इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को औरंगजेब से तशबीह दी। जी हां, कि फडणवीस औरंगजेब की तरह है। तो दो टोक जवाब देते हुए अब उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपना ये बयान वापस नहीं लूंगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गुज़िश्ता कल का दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एहतजाज हुआ, बड़े पुरअमन तरीके से और बड़ा कामयाब आंदोलन रहा। वक्फ तरमीमी बिल 2024, इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कामयाब आंदोलन गुज़िश्ता कल जंतर मंतर दिल्ली में हुआ। अब ऐसे मौके पर जो हमारे मुल्क का एक बड़ा आतंकी है यति नरसिंहन, जो जेल भी जा चुका है और कई मरतबा इसकी वजह से माहौल खराब हुआ है, तो गुज़िश्ता कल भी इसने अपने कुछ साथियों को लेकर जहां एहतजाज हो रहा है वहां पर पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। लेकिन यति नरसिंहन को गाजियाबाद में उनके समर्थकों के साथ रोक दिया गया। मगर फिर भी यति नरसिंहन की स्वामी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो पुलिस की मौजूदगी में हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। अब अगर हथियार उठाने की बात कोई दूसरा कर देता तो हमारे यहाँ के जो गोदी आतंकी चैनल है वो कुत्तों से भी ज्यादा भौंकने का हक अदा करते। मगर भगवाधारी आतंकी ने हथियार उठाने की पुलिस की मौजूदगी में बात की है। वीडियो मौजूद है, वायरल हो रही है, मगर उसके खिलाफ हमारे गोदी मीडिया भोंकने का हक अदा नहीं कर रही है।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त महाराष्ट्र में छावा फिल्म आने के बाद, इससे पहले भी ऐसी कई फिल्में बनाई गई मकसद के तहत माहौल खराब करने के लिए। तो जैसे ही छावा फिल्म आई, महाराष्ट्र का अमन वाला, शांति वाला, एकता वाला माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आतंकी जगह जगह माहौल को खराब कर रहे हैं और इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है, बल्कि शिवसेना के संजय राउत ने भी ये कहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र की जनता को सुकून से जीने नहीं देना चाहते हैं। औरंगजेब की कब्र पर तनाजे और विवाद को लेकर कांग्रेस का भी बड़ा बयान आया है। यानी उन्होंने कहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र के अमन और सुकून को खत्म करना चाहते हैं और इन आतंकियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इन आतंकियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट